ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ। ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਖਤੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਜੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਨਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਾਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਲੀਕਾਂਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ PR 126 ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜਨ, ਪਰ ਹੁਣ 92 ਬੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਇੰਜਨ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਬਣੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। 242 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੋਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, SFJ 64 ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ SFJ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਲਰਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। तो साढ़े सहयोगी रणवीर सिद्धे जुड़ रहे ने शिमला तो। रणवीर, पूरी स्थिति आपसे समझनी चाहेंगे, क्या स्थिति है इस टाइम? अलर्ट कर दिया है हिमाचल सरकार ने और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, देखिए थोड़ी देर पहले ये आदेश जो है जारी हुए हैं पुलिस मुख्यालय की तरफ से। डीजीपी ने ये आदेश जो है जारी किए। जिस तरह से सुबह ये मामला सामने आया था, अब देखिए अब हरकत में जो है पुलिस लग रही है। जिस तरह से पहले ये जो मामले सामने आए थे, देखिए ऊना में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जहां पर भिंडरावाला के जो पोस्टर लेकर आए थे, जो प्रतिबंधित जो झंडे थे उनको लेकर आए थे, जो आदेश जारी किए गए हैं डीजीपी की तरफ से, उसमें यह भी मेंशन किया गया है। उसी को देखते हुए हिमाचल में जो है हाई अलर्ट किया गया है। जो खासकर जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जो बाहरी राज्यों के साथ लगते हैं, जो इंटरस्टेट बॉर्डर है, वो पूरी तरह से सील करने के आदेश जो है पुलिस मुख्यालय ने जारी कर दिए हैं। और सभी जिलों के डीएसपी, एसपी, जो रेंजेस हैं, सदर्न रेंज है, नॉर्दर्न रेंज है, वो उनके जो है IG, DIG, ADGP, CID
सबको जो है हाई अलर्ट पर जो है रखा गया है। खासकर जो नेबरिंग जो बॉर्डर वाले जो जिले हैं वहां के लिए जो ये आदेश जारी किए गए हैं कि वहां पर हाई अलर्ट इसलिए भी हो कि जिस तरह की रणबीर मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। रणबीर मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ हिमाचल के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जुड़े हैं, सुरेश भारद्वाज। सुरेश भारद्वाज जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी ऐसी धमकियां जो हैं वो आई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आया था कि हम ऐसी धमकियों से डरते नहीं है, ऐसी धमकियों को हम सीरियसली नहीं लेते। तो क्या अब हिमाचल सरकार इस एक्टिविटी को किस तरीके से देख रही है? हाँ, देखिए, पिछले दिनों जो है वैसी धमकियां आई थी जी, और वो मुख्य रूप से जो है वो शिमला के लिए थी जी। हम शिमला के रिज मैदान पर जो है वो इस प्रकार का जो है कोई झंडा इत्यादि लहराएंगे। ठीक तब है। मुख्यमंत्री जी ने जो है उसका संज्ञान लिया था और उसके ऊपर बयान भी उनका आया था जी। लेकिन अब जो है वो धर्मशाला जो बिल्कुल अलग सा स्थान है जहाँ विधानसभा है और सारी साल उस स्थान पर केवल 5 दिन विधानसभा लगती है, वहाँ किसी प्रकार का कोई कार्यालय भी नहीं चलता है विधानसभा का या कोई दूसरा कार्यालय भी वहाँ नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो है वो एक अलग थलग सा स्थान ढूंढ करके वहाँ पर इस प्रकार की कायराना हरकत की है जो बहुत निंदनीय है। अब जो है वो निश्चित रूप से इस पर हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो कड़ा संज्ञान लेगी और हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं और साला प्रदेश है उस पर जो है वो कड़ाई से जो है वो काम किया जाएगा और साथ ही साथ इस हरकत को करने वालों की जो है वो गहन छानबीन भी होगी और इस प्रकार की हरकत करता हुआ जो है वो व्यक्ति अगर करने वाला जो है मिल जाए, पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कोई कानूनी एक्शन लिया है सर अभी तक? देखिए, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो होम मिनिस्टर भी हैं जी, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, वो अपने स्तर पर जो है वो सारे एक्शन जो है ले रहे हैं। हाई अलर्ट पर जो है वो सबको किया है और बॉर्डर जो जिले हैं हमारे उसमें विशेष रूप से जो हमारी साथ लगते जो है प्रदेश हैं उनके साथ भी तालमेल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी से जो है वो किया है जी। लेकिन आने वाले समय में जो है वो इसकी जो प्रीलिमिनरी जांच है उसको देख करके जो है वो अगली रणनीति जो है तय की जाएगी। तो सर क्या पुलिस ने अभी तक कुछ बताया है कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, अभी ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी जो विभाग भी उन्हीं का है, वो देखते हैं इस बात को और सब जो है वो कोई जांच होती है और उसमें कुछ चीजें पाई जाती हैं तो जब शुरुआती दौर में जो है इन्वेस्टिगेशन होती हैं तो वो फिर उस पर जो है वो कोई मीडिया में जो है वो मुझे लगता है कि डिस्कस नहीं की जाती हैं, ना ही कोई ज्यादा लोगों के साथ डिस्कस की जाती हैं। जो कंसर्न लोग हैं इसमें वो इस पर जो है वो निश्चित रूप से। भारद्वाज जी, आपका तो काफी लंबा चौड़ा तजर्बा है। एक SFJ जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको इंडिया में बैन किया हुआ है, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको क्या लगता है क्योंकि पंजाब में ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पे जो यंग लड़के हैं उनको कई तरह के लालच देकर पैसे का या और किसी चीज का तो इन चीजों में इन्वॉल्व किया गया, बहुत से केस पकड़े भी गए, कई जो युवा हैं वो जेलों में भी हैं, केस भुगत रहे हैं। तो क्या वहां भी कुछ आपका कोई अंदाजा है कि ऐसा ही कोई एक्टिविटी को अंजाम देने की कोशिश की गई होगी? देखिए, हिमाचल प्रदेश पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ जिला जो है वो प्रदेश है जी और कुछ हमारे जो जिले हैं वो एकदम जो है वो पंजाब के साथ जो है वो लगते हैं और दोनों तरफ जो है वो फ्रीली लोगों का आना जाना रहता है उसमें। जी बिल्कुल। तो अभी पिछले दिनों पटियाला में भी इस प्रकार की जो है वो एक घटना जो है वो देखी गई है जी और इसी प्रकार की घटना जो है वो पोस्टर्स के रूप में हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर जिला है ये भी, जहाँ ये धर्मशाला जो है वो बॉर्डर का हमारा जिला है और इसलिए ऐसे स्थान पर जो है इस प्रकार की घटना हुई है तो इस पर जो है वो ये बहुत गंभीर मामला है, इस पर निश्चित रूप से जो है वो काम किया जाएगा। और आपकी बात ठीक है कि इसमें बहुत सारे युवा जो हैं जो दूसरे रूप में जो है वो आतंकवाद में जुड़े होते हैं, उसमें भी हम यही देखते हैं कि गुमराह करके या कुछ लालच के आधार पर जो है वो लोगों को विशेष रूप से युवाओं को जो है वो
लोग अपने कब्जे में ले लेते हैं। और अभी भी बहुत सारे लोग जो कनाडा में, इंग्लैंड में, विदेशों में जो है वो रहते हैं और वहां से जो है कई प्रकार के मुहिम चलाते हैं। तो वो कुछ ना कुछ इस प्रकार के जो है वो जो तत्व होते हैं देश में भी, उनसे सांठगांठ करके सर आप इसको चुनावों से जोड़ के देखते हैं क्या? इसके पीछे कोई सियासत देखते हैं किसी तरह की? देखिए, हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं कि भी इसमें हुआ है। जो है वो सियासत, या कहें कि भी एक नई पार्टी ने जो है सत्ता संभाली है जी, और सत्ता संभालने के तुरंत बाद जो है पटियाला में एक घटना हो गई जी, और वो एंट्री हिमाचल प्रदेश में भी कर रहे हैं जी। और उस एंट्री के साथ साथ इस प्रकार की जो है ये झंडे लगाने की या पोस्टर्स लगाने की जो है वारदात हिमाचल में भी हो रही है। तो अब ये सारा क्या नेक्सस है? अब इसमें मैं कोई तथ्यों के आधार पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये सब चीजें यहाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो राजनीति भी हो सकती है। चुनाव के नजदीक आने के कारण इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा हो सकता है, पर ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। ठीक है सर, शुक्रिया साढ़े नाल गलबात करन लई। कि सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर साढ़े नाल जुड़े हिमाचल तो, और उन्होंने गलबात की है। हालांकि क्योंकि पंजाब ते हिमाचल आपस दे विच जुड़े हुए ने, बॉर्डर जुड़े हुए ने, और इस करके उन्होंने भी इस गल दा जिहड़ा है खदशा जरूर प्रगटाया कि किते ना किते ये जिहड़ियां गतिविधियां ने, चाहे वोट पोलराइजेशन नूं लैके होण, क्योंकि हिमाचल दे विच भी इलैक्शन ने, और किस तरीके नाल इन्हां चीज़ां नूं लैके पब्लिक दे विच मैसेज जांदा है, सुनेहा जांदा है, क्योंकि बाद दे विच फिर लोकां दा मन किस तरीके नाल मौजूदा सरकारां नूं देखदा है या जिहड़ियां दूसरियां अगे आउणियां उन्हां नूं देखदा है। सो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी दा जिहड़ा ये मसला हुंदा है वो बड़ा गंभीर हुंदा है। इसे करके असीं गलबात करन दी कोशिश कर रहे सी या उन्हां तो कोई रिएक्शन लैण दी कोशिश कर रहे सी। साडे सहयोगी रणबीर भी जुड़े हुए ने शिमला। एक बारी मैं दोबारा रणबीर दा रुख करूंगा। रणबीर, जैसे भारद्वाज साहब बोल रहे थे, जैसे भारद्वाज साहब से मैं अभी बात कर रहा था, तो बात पॉलिटिक्स की, कानूनन तो उन्होंने कहा कि सीएम देख रहे हैं इस पूरे मामले को और जो भी एक्शन लेना है वो सीएम लेवल पे होगा। लेकिन क्योंकि हिमाचल में कुछ महीनों बाद इलेक्शन है, आमतौर पर जब ऐसी एक्टिविटीज होती है, मैं पंजाब से जोड़ के उनसे तभी ये सवाल पूछ रहा था कि ऐसी चीजों को वोट पोलराइजेशन के साथ जोड़ा जाता है, कई बार कोशिश की जाती है वोट पोलराइज करने की। तो क्या ऑन द रिकॉर्ड, चाहे ना कोई बोले, लेकिन क्या ऑफ द रिकॉर्ड जो हिमाचल के लीडर हैं किसी भी पार्टी के हो, वो इस चीज का उसमें देखते हैं खदशा कहीं ना कहीं कि इसको वोट पोलराइजेशन से जोड़ा जा सकता है? देखिए, सीधे तौर पर तो किसी ने अभी ये नहीं कहा है। अब इस मामले में यूएपीए जब लग गया है, जो इसकी जो धारा है इस एक्ट की, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की जो धारा है 13, उसको जोड़ा गया है, तो उससे ये जो है ये जो धारा जब लगती है, ज्यादातर जो है जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उसको ध्यान में रखकर लगता है। जो आपका सवाल है उसको लेकर देखिए, सीधे तौर पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ, कैमरे पर कांग्रेस ने जरूर ये कहा है, खासकर विक्रमादित्य सिंह ने ये कहा है कि ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये कोशिश भी हो सकती है कि जिस तरह से अभी मसला हिमाचल में ये है कि हिमाचल पुलिस जो है बैकफुट पर नजर आ रही है। सवाल पुलिस पर बहुत सारे उठे हैं। पेपर लीक हुआ है पुलिस भर्ती का, तो इसको डाइवर्ट करने की भी कोशिश हो सकती है। महंगाई किस तरह से बढ़ रही है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा जो है कांग्रेस ऑन कैमरा ये कह रहे हैं। ऑफ कैमरा जो है अभी तक किसी ने इस तरह की बात नहीं कही है। कुछ लोग हाँ चर्चा जरूर कर रहे हैं कि जो पंजाब का जो असर है पटियाला में जिस तरह से हुआ, तो यहां पर भी एक कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए। और एक संदेश यहां से भी दिया जा सकता है राजनीतिक तौर पर, और यहां पर सरकार बैकफुट पर भी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि 1 साल पहले से इस तरह की धमकियां आ रही थी और जो बयान मुख्यमंत्री की तरफ से पहले दिए गए इग्नोर किया गया। और अब जिस तरह से अब सीधे तौर पर जो है झंडे विधानसभा भवन में लगाए गए हैं, धर्मशाला में, तपोवन में, तो इससे अब सवाल जो है और ज्यादा यहां पर उठना शुरू हो गए हैं। सारी चीजों को जो है इसमें जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जो डीजीपी की तरफ से ऑर्डर है, पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो बॉर्डर वाले जो जिले हैं उनके लिए आदेश है,
सारे सील किए जाएंगे। खासकर जो छुपने वाली जगह है वहां पर जो है निगरानी रखी जाएगी, जिसमें होटल्स हैं, सराय हैं, और इसके अलावा जो अलर्ट है, जो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग है, भवन है, उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ है, उन्हें भी निर्देश जो है दिए गए हैं। जितने महत्वपूर्ण स्थान है भीड़ भाड़ वाले, उन सभी पर जो है अलर्ट जारी किए गए, सिक्योरिटी वहां की बढ़ाने के लिए कहा गया है। जाहिर सी बात है कि इस मसले पर अब राजनीति भी खुलकर हो रही है। जैसे ये मामला सामने आया था, आपको याद होगा कि 29 मार्च को जो है एक तिरंगा यात्रा भी विक्रमादित्य सिंह ने यहां से निकाली थी। तो अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी कड़ियां इसमें जोड़ना बाकी है कि राज्य सरकार अब इस मामले में कितनी जल्दी जो है एक्शन लेती है, पुलिस पकड़ पाती है या नहीं, उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, ये अभी देखना बाकी होगा। जी ਜੀ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਿਲੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2.5 ਕਿਲੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਿਲੋ RDX ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮਰ ਸੀ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਸੀ, ਬੈਟਰੀ ਸੀ, ਛਰੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੀ, IED ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ, 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਸੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀ IED ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਇੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਹੈ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ RDX ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ RDX ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਨੋਂ ਦਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੰਬ ਨੋਦਕ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ CA ਸਟਾਫ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਮਕਸੂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ RDX ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18।